Good morning, students. This is Professor Harvinder Singh Saluja from Department of Electronics and Communication Engineering, Tech, Natipur, Bhopal. So today we are going to study the topic Boolean algebra. Basically, what is Boolean algebra? Before starting the topic, we will just go through its definition and why it is useful. So Boolean algebra is a minimization technique to minimize your Boolean expression. So there are certain types of Boolean expressions. उन सबको मिनिमाइज करने के लिए Boolean algebra एक मिनिमाइजेशन टेक्निक है. तो Boolean algebra को अप्लाई करने के लिए there are certain postulates और we can say rules. उन rules के थ्रू हम किसी भी एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं using this algebra method. So first we will go through the postulates or rules of Boolean algebra. So first rule is commutative law. Commutative law कहता है A dot B equals to B dot A. Second one, it says A plus B equals to B plus A. So this is the commutative law. We can prove it also using our binary 0 and 1. अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पर, अगर A है, A अगर हमारे पास 0 है तो A 0 भी हो सकता है, A 1 भी हो सकता है. एंड B अगर हमारे पास सपोज 1 है तो we can see that A dot B, that is 0 dot 1 equals to same here 1 dot 0. दोनों का मान क्या आएगा? 0 आएगा. तो from here we can prove that 0 equals to 0. That means first law is true. Now come to the B. अगर A को 0 लेते हैं, B को 1 लेते हैं again, तो 0 plus 1 equals to 1 plus 0. 0 plus 1 is 1 and 1 plus 0 is again 1. So from here we can see that 1 equals to 1. So it is proved that commutative law A dot B equals to B dot A or A plus B equals to B plus A. In place of A equals to 0, B equals to 1, you can change the values also. You can take A equals to 1, you can take B equals to 0 and so on. So you will get the result that A dot B equals to B dot A and A plus B equals to B plus A. Now the next postulate or rule is associative law. एसोसिएटिव लॉ कहता है A dot B multiplied with C equals to A into B dot C, and similarly its second version is again same. So this is the second postulate of associative law, that is A dot B whole bracket plus C equals to A plus whole bracket B plus C. We can also prove this also. We have to consider any value of A, B and C. Say A is equal to 0, B equals to again 0, C equals to 1. And in place of here we put A dot B, that is 0 into 0 into 1 equal to again 0 into 0 into 1. You will get 0 है तो मल्टीप्लाई अगर कुछ भी 0 से होगा तो आंसर 0 आएगा, और अगेन यहाँ भी 0 है तो it will give the result 0. So from here left hand side is equal to right hand side. So this is proved. Similarly, if you see for B, if you take the same values, you will get 0 plus 0 plus 1, again 0 plus 0 plus 1. We will get 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1. 0 plus 0 is 0 plus 1 is 1. So from left hand side and right hand side, we have seen that both are equal. So its B is also true. So this is the second law of Boolean algebra, that is associative law. Now we see the third
law of Boolean algebra, that is distributive law. Distributive law says that A into B plus C is equal to AB plus AC. Okay, already we have seen it earlier also. अगर एग्जाम में इसका प्रूफ आ जाता है तो अगेन यू कैन प्रूव इट यूजिंग योर ट्रूथ टेबल और यूजिंग एनी एक्सप्रेशन. अगर हम ट्रूथ टेबल के फॉर्म में अगर चेक करें तो भी हम चेक कर सकते हैं. ए बी सी की कोई वैल्यू ले लें. सपोज ए की ले ली अगेन बी 0, बी की ले ली 1, सी की ले ली 1, तो इट्स गिवन एज 0 into 1 plus 1. अगेन 0 into 1 plus 0 into 1. It gives 1 plus 1 is 2 or 1 plus 1 is 1 in binary. 1 into 0 is 0. Again 0 plus 0 equal to 0. It is proved 0 equals to 0. Left hand side is equal to right hand side. You can change the values of ABC also. So you will get the same result. So this is the distributive law. Now fourth law is AND laws. ये कहता है A B C D. We take the four versions of it. A dot 0, A dot 1, A dot A, and A dot A1. A dot 0. A dot 0 will be 0. हम इसका प्रूफ भी देखेंगे. अगर 0 का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आएगा. A dot 1 is A. अगर 1 का किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता. वही वैल्यू होगी जिसका 1 से मल्टीप्लिकेशन होता है. A dot A is A and A dot A bar is 0. We will prove one by one all these four cases. First we'll take A dot 0 equals to 0. A की वैल्यू जैसे मैंने बोला you can take it as either 0 either 1. अगर आप A की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 dot 0 is equal to 0. अगर आप A की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 dot 0 equals to 0. तो दोनों केस में जब A की वैल्यू 0 ली और A की वैल्यू 1 ली, दोनों केस में आपको रिजल्ट क्या आया? 0 आया. That means it is proved कि A dot 0 A की वैल्यू कुछ भी हो आंसर में 0 ही आएगा. Similarly we will see for second case. अब फर्स्ट केस में हम A की वैल्यू 0 लेते हैं, 0 dot 1 is equal to 0. अब सेकंड केस में हम A की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 1 dot 1 equals to 1. तो हम चेक कर पा रहे हैं कि A dot 1 is equal to A. तो A की वैल्यू जब फर्स्ट टाइम हमने 0 ली तो रिजल्ट क्या आएगा? 0. मतलब दिस इज इक्वल टू दिस. जब A की वैल्यू जब हमने 1 ली सेकंड टाइम तो रिजल्ट आया 1. मतलब दिस इज इक्वल टू दिस. देयर इज आल्सो सिग्निफाइज 0 इक्वल्स टू 0 जो कि A था, 1 equals to 1 जो कि A था. It is also proved A dot 1 equals to A. Now third case A dot A equals to A. इसको हम प्रूव करते हैं. पहले हम A की वैल्यू 0 ले लेते हैं. तो 0 लेंगे अगर तो 0 dot 0 equals to 0. फाइन. A की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 dot 1 equals to 1. तो जो हमने A की वैल्यू ली वही रिजल्ट आया. फर्स्ट केस में A की वैल्यू 0 ली तो रिजल्ट आया 0, दैट इज A. सेकंड केस में A की वैल्यू 1 ली तो रिजल्ट आया 1, दैट इज A अगेन. फोर्थ केस देखते हैं. दिस इज आल्सो प्रूफ. फोर्थ केस देखते हैं. A की वैल्यू 0 लेने वाले. अगर A की वैल्यू 0 लेंगे तो A बार क्या होगा? इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा आपका 0. अब सेकंड केस में A की वैल्यू 1 ले लें तो A की वैल्यू 1 लेंगे आप तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, दैट इज A का कॉम्प्लीमेंट. अगेन यू गेट 0. दोनों केस में A की वैल्यू 0 ले या 1 ले, आपका रिजल्ट दोनों केस में आना है 0. तो दिस इज आल्सो प्रूव्ड. तो these four laws comes under the category of AND laws, and this is very important for solving the Boolean algebra. Now we will see the next category, OR laws.
और लॉस के भी 4 केसेस होंगे। We will see first the result and then we will prove it. So, first case, a plus 0 is equal to a. A plus 1 equals to 1. A plus a equals to a. A plus a bar is equal to 1. We will prove one by one all these 4 cases. सबसे पहले हम a की वैल्यू 0 लेते हैं। तो a की वैल्यू 0 लेते हैं फॉर कैटेगरी a। तो अगर 0 लेते हैं तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। फिर हम a की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। तो हम चेक कर रहे हैं, जब हमने a की वैल्यू 0 ली तो रिजल्ट आया 0 दैट इज a। जब हमने a की वैल्यू 1 ली तो रिजल्ट आया 1 दैट इज a। तो अगेन इट्स प्रूव a प्लस 0 इक्वल्स टू a। a की वैल्यू कुछ भी हो, रिजल्ट हमें a ही आएगा। सेकंड केस देखते हैं, a प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ये कैसा है? अगेन पहले हम a की वैल्यू 0 ले लेते हैं, 0 plus 1 equals to 1. We know it. And अगर हम 1 की वैल्यू लेते हैं, a की वैल्यू 1 plus 1 is again 1. तो हम दोनों केस में देख रहे हैं, a की वैल्यू आइदर हमने 0 ली या 1 ली, दोनों केस में हमें रिजल्ट आ रहा है 1. तो it proves that a plus 1 equals to 1. थर्ड केस देखते हैं हम, a की वैल्यू इसमें हम पहले 0 ले लेते हैं, तो 0 plus 0 equals to 0. फिर सेकंड केस में a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 1 plus 1 equals to 1. तो हम देख रहे हैं जब हमने a की वैल्यू 0 ली थी तो रिजल्ट आ रहा है 0 दैट इज a। जब हमने a की वैल्यू 1 ली थी तो रिजल्ट आ रहा है 1 दैट इज a। तो इट्स प्रूव दैट a plus a equals to a. Now we will take the fourth and last category of this or loss, a plus a bar equals to 1. तो सबसे पहले हम a की वैल्यू ले लेते हैं 0, 0 plus a bar क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट इज 1, 0 plus 1 is 1. अब हम a की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 प्लस अब a का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 का अगेन 1। तो दोनों केसेस में आप देख रहे हैं a की वैल्यू आइदर 0 ली आपने आइदर 1 ली, लेकिन दोनों केसेस में आपको रिजल्ट आया 0। तो इट्स आल्सो प्रूव दैट a plus a bar is 1. फाइन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इन्वर्जन लॉ। इन्वर्जन लॉ सेज दैट अगर कोई वेरिएबल है उस पे अगर हम डबल बार लगा दें, डबल कॉम्प्लीमेंट लगा दें, उसका रिजल्ट वही वेरिएबल आएगा। एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल a है, उस पे अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट लगा दें, उसका रिजल्ट ये a ही रहेगा। उसको हम देखते हैं प्रूफ। अगर a की वैल्यू 0 हुई तो 0 का कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो क्या आएगा 1। फाइन। अब इस पे डबल कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे दैट मींस दिस, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। तो वी हैव सीन दैट अगर a की वैल्यू 0 थी तो उसको डबल कॉम्प्लीमेंट लगा के रिजल्ट आ गया 0। सिमिलरली a की वैल्यू अगर 1 है तो 1 पे अगर आप कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं सिंगल तो आपका रिजल्ट आएगा 0। अगर आप इसमें डबल कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं मतलब इस पे कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1। तो वी हैव सीन दैट 1 पे डबल कॉम्प्लीमेंट लगाया तो 1 आ गया। दैट मींस वी हैव कैंसल आउट द डबल बार, डबल कॉम्प्लीमेंट। तो दिस लॉ इज नोन एज इन्वर्जन लॉ। फाइन। नाउ we will see the next important rules, जिनके नाम नहीं है लेकिन we are saying it important rule because with the help of that rules we are minimizing our boolean expressions. So we will give that categories important rules. So first one is a plus ab is equal to a. इसको हम प्रूव करते हैं using the previous laws, commutative, associative, distributive, and loss and all loss और inversion law। अगर हम इसमें a कॉमन ले लें, we will get 1 plus b, and we know that from OR law 1 plus a is equal to 1. Similarly 1 plus b is equal to 1. तो a into 1 is equal to a. So it's proved. A plus ab is equal to a. Next important rule is a plus
ए बार बी इक्वल टू ए प्लस बी, इसको प्रूव करना है। तो लेट्स सी, हमको पता है रूल नंबर ए से कि ए की जगह हम ए प्लस ए भी लिख सकते हैं, राइट। तो इन प्लेस ऑफ ए आई कैन राइट हियर ए प्लस ए, तो मैंने लिख दिया ए प्लस ए बी, इस ए की जगह पे प्लस ए बार बी। अब इसमें इन दोनों में मैं बी कॉमन ले लूं, अगर इन दोनों में बी कॉमन लेता हूं तो आई विल गेट फ्रॉम और लॉस हमने पढ़े हुए हैं a प्लस ए बार इज 1, वी हैव प्रूव्ड इट। तो यहां पर हम 1 करते हैं तो a प्लस b इट्स प्रूव्ड। तो सेकंड लॉ इज आल्सो प्रूव्ड, दैट इज a प्लस ए बार b इज इक्वल टू a प्लस b। तो इन प्लेस ऑफ सॉल्विंग these rules here, you can simply insert the result. If needed, if asked in the exam, you will have to prove it. That's it. Now the third important rule is a plus b into a plus c equal to a plus bc. We will prove it this also. Opening the bracket, we will get a into a plus ac plus ab plus bc. Fine. Now हमें पता है एंड लॉ से a डॉट a इक्वल टू ये होता है। Now from here take a common, we'll get 1 plus c. We know that 1 plus c is equal to 1, जैसे हमने देखा था 1 plus a equals to 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, we'll get a plus ab plus bc. अगेन इसमें a कॉमन ले लीजिए, अगेन we'll get a into 1 plus b plus b3. अगेन 1 plus b आप 1 पुट कर दीजिए, जिस तरीके से आपने 1 plus c 1 पुट कर दिया, we'll get a plus bc and it is proved. A into b whole bracket into a plus b into a plus c is equal to a plus b. It's again comes under the important laws. इन रूल्स का हम यूज कर सकते हैं हमारे बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए। Now very important law which we discuss here under the category of boolean algebra is De Morgan's law. डी मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रूल बनाया, उनके नाम से रूल प्रचलित है। डी मॉर्गन्स लॉ दो रूल कहता है। फर्स्ट इज ए डॉट बी का होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। दूसरा है ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। तो दोनों लॉ में अगर हम एक विशेषता देखें, स्पेशलिटी देखें या सिमिलरिटी देखें, तो ये है फर्स्ट वाले लॉ में आपने क्या किया, a डॉट b का होल बार था तो आपने उस बार को ब्रेक कर दिया, इस बड़े बार को दो भागों में बांट दिया और साइन को चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह आपने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। सिमिलरली सेम कांसेप्ट यू हैड अप्लाइड हियर आल्सो। आपने a प्लस b का होल बार था, उसको दो भागों में बांट दिया, a बार एंड b बार, और साइन को चेंज कर दिया, प्लस की जगह डॉट। तो डी मॉर्गन्स लॉ का हम एक सिंपल याद करने के लिए एक स्टेटमेंट रख सकते हैं, ब्रेक द बार चेंज द साइन। जो बड़ा बार होगा होल बार, उसको ब्रेक करना है दो भागों में, तीन भागों में। अगर एबीसी तीन वेरिएबल्स होते तो a डॉट b डॉट c डॉट के ऊपर होल बार होगा, तो उसको हम करते हैं a बार प्लस b बार प्लस c बार एंड सो ऑन। तो हमने बार को ब्रेक किया और साइन को चेंज किया, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ को हम प्रूव करते हैं यूजिंग द ट्रुथ टेबल। फाइन। तो सबसे पहले हम रूल नंबर ए को प्रूव करते हैं। तो a और b हमारे पास दो वेरिएबल है, सबसे पहले हम इसके ट्रुथ टेबल बनाते हैं। वी हैव टेकन a b। चूंकि a और b हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स हैं,
या दो बाइनरी वैल्यूज है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज होंगी, ए की 0 0 की 0 है 1 और बी की 0 1 और कंबाइंड की 4 होगी। ए और बी अगर दो वेरिएबल है तो 0 0 0 1 1 0 1, तो हम उनकी चार पॉसिबिलिटीज जो बन सकती है लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। जितने वेरिएबल होंगे उसकी 2 टू द पावर n पॉसिबिलिटीज होती हैं बाइनरी। अगर तीन वेरिएबल होंगे तो 2 टू द पावर 3 8 पॉसिबिलिटीज होगी, चार वेरिएबल होंगे तो 2 टू द पावर 4 16 पॉसिबिलिटीज होंगी एंड सो ऑन। तो अब हम इसको चेक करते हैं फर्स्ट वाले लॉ को, हमें क्या क्या चाहिए है। हमें ए बार चाहिए, ए बार वाला कॉलम लिख लेते हैं, फिर हमें बी बार चाहिए, बी बार वाला कॉलम लिख लेते हैं, फिर हमें ए डॉट बी चाहिए, ए डॉट बी लिख लेते हैं, फिर हमको ए डॉट बी का होल बार चाहिए। वी विल चेक इट। तो ए बार क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए क्या है 0 0 1 1, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 1 1 0 0। बी बार क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी क्या है 0 1 0 1, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 1 0। सिमिलरली ए डॉट बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1। अब a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो a डॉट b निकाला है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा 1 1 1 0। हमें प्रूफ क्या करना था, a डॉट b का होल बार दैट मींस दिस इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। एक और एंट्री लिख लेंगे एंड में, a बार प्लस b बार, a बार प्लस b बार मतलब इन दोनों का एडिशन। तो 1 plus 1 is 1, 1 plus 0 is again 1, हमने बाइनरी अरिथमेटिक में देखा ना बाइनरी एडिशन रूल्स। 0 plus 1 is 1 and 0 plus 0 is 0। तो इन दोनों से हम चेक कर सकते हैं a डॉट d का होल बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, दोनों की एंट्री सेम है। सो फ्रॉम हियर वी कैन प्रूव इट, फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन। क्लियर है? फाइन। नाउ वी विल सी द सेकंड कैटेगरी ऑफ डी मॉर्गन्स। अब देखते हैं क्या क्या चाहिए। ए बी तो हमारे पास इनपुट्स थे इसलिए हमने ट्रुथ टेबल पर रख नहीं किया, ए बार बी बार भी चाहिए इसलिए हमने ट्रुथ टेबल पर रख नहीं किया। अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहले a प्लस बी, फिर हमको चाहिए a प्लस बी का होल बार, फिर हमको चाहिए a बार डॉट b बार। तो a प्लस बी का होगा, इन दोनों को ऐड कर दें, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 is 1, 1 plus 0 is again 1 and 1 plus 1 is 1। फाइन। नाउ इनका बार a प्लस b का बार, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 1 की जगह 1 0 0 0। नाउ a बार और b बार मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0 and 0 into 0 is again 0। So we can see from this table, from these two entries, a plus b का होल बार is equal to a बार dot b बार। हम दोनों के एंट्री देखिए 1 0 0 0 0 0 0। So from this table again this is proof the second law of the Marcus, that is a plus b का होल बार is equal to a बार dot b बार। फाइन। तो इसको हम गेट के माध्यम से भी बना सकते हैं हमारे बुलेट अलजेब्रा के जो गेट्स है ए मार्कर्स को। ये फर्स्ट क्या शो कर रहा है, दैट इज a डॉट b। a डॉट b मतलब हमने एंड गेट लगाया, बार है मतलब उसमें एंड गेट लगा दिया, इज इक्वल टू प्लस क्या शो कर रहा है, और गेट है, लेकिन a और b इनपुट्स नहीं है, a बार b बार इनपुट्स है। इनपुट्स a की जगह हम लेंगे बबल। बबल का नाम वही होता है जो नॉट गेट होता है, चाहे तो हम यहां पर नॉट गेट लगा दें या लगा दें, बोथ आर राइट। दिस इज a के लिए, b के लिए हम लिख सकते हैं सेम a प्लस b मतलब और गेट, कॉम्प्लीमेंटेड है मतलब आउटपुट पे एक बबल लग जाएगा, दैट मींस नॉर गेट। दिस इज इक्वल टू a डॉट a बार डॉट b बार। तो डॉट के लिए हमारा एंड गेट लगता है, तो एंड गेट के दोनों इनपुट्स बबल है, सिमिलरली इनपुट। So this is how we can implement the De Morgan's both law using the gates. That means we can say that the OR gate whose inputs are bubbled is equal to NAND gate, or we can say that the AND gate whose inputs are bubbled is equal to NOR gate. This is the conclusion of De Morgan's law. Fine.
there is one more very important category of law, that is principle of duality, or we can say duality principle. Duality principle कहती है कि हम स्टार्ट करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन से और बूलियन एक्सप्रेशन पे ही खत्म करेंगे. That means we will start with the boolean expression and terminate with the boolean expression, in which and sign will be replaced by or sign, or sign will be replaced by and sign. मतलब प्लस ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है वो प्लस साइन से रिप्लेस हो जाएगा, और एक्सप्रेशन में अगर कहीं 0 और 1 है तो 0 1 से रिप्लेस हो जाएगा और 1 0 से रिप्लेस हो जाएगा. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी. तो इसके अकॉर्डिंग हम एक आध एग्जांपल देख लेते हैं. अगर हमारे पास कोई लॉ है a प्लस b बार इज इक्वल टू 1, ये हमने और लॉ में पढ़ा है a प्लस a बार इज इक्वल टू 1. इसका डुअल क्या होगा? जैसा मैंने बोला साइन चेंज हो जाएगा, a डॉट b बार. साइन क्या था? प्लस था, प्लस के जगह डॉट हो गया इज इक्वल टू. और मैंने क्या बोला था? एक्सप्रेशन में अगर 1 आएगा तो 0 हो जाएगा, 0 आएगा तो 1 हो जाएगा. तो यहां पर एक्सप्रेशन में 1 आया तो 0 हो गया. तो दिस इज अगेन यू हैव प्रूव दिस इन एंड लॉस, दैट इज a डॉट a बार इज इक्वल टू 0. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी. ओके, एंड इसके साथ हम एक और एग्जांपल और देख सकते हैं. एग्जांपल a plus 1 equals to 1, we know that. अब इसका डुअल क्या होगा? ये भी आप और लॉ में पढ़ चुके हैं. इसका डुअल a डॉट प्लस की जगह डॉट हो गया, साइन चेंज, 1 की जगह 0 हो गया, अगेन 1 की जगह 0 हो गया. दिस इज आल्सो यू हैव प्रूव a डॉट 0 goes to 0, दैट मींस 0 1 किसी से मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होता है, रिजल्ट 0 आएगा. तो दिस आर द डुअल, और इसी के कांसेप्ट से हम समझ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी. तो ये हमारे हो गए बूलियन अलजेब्रा. कौन कौन से रूल्स हैं हमारे पोस्टुलेट्स हैं? पहला है हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो कहता है a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, एंड सेकंड a प्लस b इक्वल टू b प्लस a. नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ कहता है a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c, जस्ट इंटरचेंजिंग द ब्रैकेट्स. सिमिलरली a डॉट b डॉट c इक्वल टू a डॉट b डॉट c, just interchanging the places of brackets. Distributive law कहता है a into b plus c equal to ab plus ac, and there are AND laws, OR laws, and there is inversion law. Inversion law कहता है a double bar a के ऊपर अगर डबल बार होगा that is result in a. Then there are special laws. Special laws says that a plus ab equal to a plus a bar b equal to a plus b, and a plus b into a plus c equals to a plus bc. And the De Morgan's law. De Morgan's law कहता है a dot b का whole bar equals to a bar plus b bar, a plus b का whole bar equal to a bar dot b bar. That means break the bar, change the sign. Along with that, this is the principle of duality, which shows that, which says that कि we have to replace the sign and replace the 0 and 1. अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0. So this is the principle of duality. Fine. Now we will solve some numericals or problems based on this all postulates. So I had done some questions here. हम इन questions को one by one देखते हैं. पहला question है, we'll take first question. Prove a plus a bar b plus ab is equal to a plus b. We'll prove it. तो सबसे पहले हम क्या करें? a plus a bar b plus ab equal to a plus b. What we'll do? इन दोनों में हम b कॉमन ले लें. We'll get a plus a bar. a plus a bar आपको पता है क्या होता है? और लॉस में हमने पढ़ा हुआ है a plus a bar equal to 1. तो अगर a 1 होगा, it is proved that a plus b. It is proved. This is proof number 1. Now we'll take second proof. Proof AB plus ABC plus A B bar is equal to A. Now from here what we'll do?
अगर इन दोनों फर्स्ट टू एक्सप्रेशन में ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है तो ए बी को हम साथ ले लें, तो रिजल्ट विल बी 1 प्लस सी प्लस ए बी बार. नाउ विल चेक 1 प्लस सी इज 1, जिस प्रकार से 1 प्लस ए इक्वल टू 1 होता है, तो इट इज ए बी प्लस ए बी बार. अब इन दोनों में अगेन ए कॉमन है, विल टेक ए कॉमन, विल गेट बी प्लस b bar, and you know that b plus b bar is again 1, so the result will be a. Proved also. The second one is again proved, a plus a bar b plus a b is equal to a plus b using the Boolean oscillates, the Boolean laws. Now we see the third problem. Third problem is a b bar plus a bar b plus a b plus a bar b bar. इसको प्रूव करना है हमें. तो लेट्स सी, we'll take a common from these two terms. A common from these two terms, so we get b bar plus b. अब जो रिमेनिंग टर्म्स है उनसे हम ए बार कॉमन ले लें, तो विल गेट b प्लस b बार. वी नो दैट a प्लस a बार इज 1, सिमिलरली b प्लस b बार इज अगेन 1, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, ये दोनों 1 हो जाएंगे, विल गेट a प्लस a बार. a प्लस a बार भी हमें पता है 1 होगा, विल गेट द रिजल्ट 1. दैट मींस इट्स ट्रू, a b बार प्लस a बार b प्लस a b प्लस a बार इज 1. Now we'll see some complicated questions. Question number 4. That means we have to simplify it and find out the result using this Boolean algebra. So, fourth one, simplify a plus b bar plus ab into a plus b bar into a bar b. फाइन. तो हम देखते हैं, हमने इंपॉर्टेंट रूल्स पे पढ़ा था a plus ab इज a, तो यहां से a plus ab को हम क्या लिख सकते हैं? फाइन. तो हमने लिखा है इसको a plus ab को a plus b bar into a plus b bar into a bar b. अब इन दोनों को हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स, विल गेट a plus a b bar plus again a b bar plus again b bar b bar. ठीक है. We know that from end laws again a dot a is a, तो a dot a को क्या लिखते हैं प्लस, ये दोनों एक्सप्रेशन भी सेम है, तो डुप्लीकेसी में a plus a is again a, तो हम a की बार लिख सकते हैं इसको a b bar plus b bar into b bar, again डुप्लीकेसी है, तो we'll write only one time, that's b bar, and then again we'll write a bar b. Fine. Now a plus a b bar, अब इसमें हम a कॉमन ले लें, विल गेट 1 plus b bar plus b bar into a bar b. तो 1 plus b bar is 1, जिस प्रकार से 1 plus a 1 होता है, 1 plus b 1 होता है, 1 plus b bar भी 1 ही होगा. तो यहां पर हम लिखते हैं a plus b bar into a bar b. Now opening the bracket, we will get a into a bar b plus b bar into a bar into b. We know that from end laws we have seen, चौथा वाला जो end law था, a into a bar is 0. a into a bar अगर 0 होगा तो 0 into b will be also 0. आगे हमने चौथा वाला ही बात करें, जैसे b bar into b या b into b bar is again 0, तो 0 into a bar is again 0, तो 0 plus 0 is 0.
So it is simplified the given expression a plus b bar plus ab into a plus b bar into a bar b is 0. It's proved. So this is how we are applying our all Boolean algebra postulates to solve any Boolean expressions. This is known as the Boolean expression that what we are solving here. Now we'll see the next fifth question. We are taking maximum to maximum question so that your all the concepts maybe will be clear. Simplify a b bar plus a bar plus b का होल बार है तो यहां पर हम लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा था, याद होगा थोड़ी देर पहले। ब्रेक द बार चेंज द साइन, इस पूरे बार को ब्रेक कर दें और साइन को चेंज कर दें। यहां पर तीन टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों के बीच का साइन जो है वो प्लस है, प्लस की जगह हो जाएगा डॉट। तो विल सी बार को ब्रेक कर दिया डॉट, अगेन बार को ब्रेक कर दिया ऊपर आएगा बार, प्लस अगेन बार को ब्रेक कर दिया। look at this now we know that डबल इन्वर्जन लॉ क्या कहता था कि डबल बार आपस में कैंसिल आउट कर देगा। तो यहां इन्वर्जन लॉ अप्लाई होगा तो आ जाएगा ab, यहां भी इन्वर्जन लॉ अप्लाई होगा तो आ जाएगा a। अब यहां भी अगेन डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा a बार प्लस b बार। फाइन, तो ये आपका क्या है, दिस इज a सॉरी दिस इज मल्टीप्लिकेशन। तो डी मॉर्गन्स के हिसाब से ये प्लस की जगह डॉट आ जाएगा। फाइन, तो अब ये क्या आ जाएगा आपका a इंटू b इंटू a बार प्लस b बार। हमें पता है एंड लॉस के हिसाब से a इंटू a इज a, तो रिमूविंग डुप्लीकेसी वी गेट ab इंटू a बार प्लस b बार। नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट वी गेट a b a बार प्लस a b b बार। जैसे पिछले केस में था a into a bar is 0, a into a bar is 0, similarly b into b bar is 0, 0, 0 plus 0 is 0. It's proved using De Morgan's law that ab का बार plus a bar plus ab का whole bar it's 0. Now we'll see the last question of this Boolean algebra method. Simplify again. This is one more category of De Morgan's law, so that your concept of De Morgan's will also clear. Simplify a into b bar plus c का whole bar into bc का whole bar. Now again apply the De Morgan's law. a इस पे De Morgan's law अप्लाई करें तो ब्रेक द बार चेंज द साइन, तो बार को ब्रेक कर दें और साइन को चेंज कर दें। फाइन, तो प्लस की जगह डॉट कर दिया और बार को ब्रेक कर दिया। नाउ अगेन अप्लाई हियर आल्सो De Morgan's law, बार को ब्रेक कर दें और साइन को चेंज कर दें, तो डॉट की जगह प्लस कर दिया। नाउ डबल बार को कैंसिल आउट इन्वर्जन लॉ के हिसाब से, तो आपका आ जाएगा a b c बार into b बार प्लस c बार। नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट यू गेट a b c बार डॉट b बार प्लस a b c बार डॉट c बार। तो ये b into b बार आपका 0 हो जाएगा एंड लॉ के हिसाब से a into b बार के हिसाब से, तो दिस विल कम 0। नाउ a b c बार into c बार, c बार दो बार है तो दो बार की जगह एक बार लिख सकते हैं। तो रिजल्ट इज a b c बार। तो आपका क्वेश्चन जो था a into b बार प्लस c का होल बार into bc का होल बार, उसका रिजल्ट आया a b c का होल बार। This is all about Boolean algebra. So there are n number of questions, n number of examples by which you can understand Boolean algebra very clearly. So class में कुछ limited question ही solve करा सकता था। Now it's your turn to solve as many questions as you can. तो उम्मीद कर रहा हूँ कि Boolean algebra आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो we will discuss in the doubt clearing session. Till then, take care of yourself. Stay home, stay safe. Thank you.